عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم میں آج اس کے اگلے حصے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑائی کا یہ بھینکر انجام دیکھ کر دونوں قبیلے چونک گئے۔ دونوں نے مل کر یہ عہد کیا کہ اب ہم ایکتا کے ساتھ اور محبت اور پیار سے رہیں گے اور سمے پڑنے پہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے۔ سندھی اور صلح کے بعد دونوں نے طے کیا کہ اوس اور خزرج کا سردار ایک ہی ہوگا۔ اس کے لیے اس کی نظر عبداللہ بن ابی پر پڑی۔ یہ خزرج کا آدمی تھا، سوجھ بوجھ اور ہوشیاری میں مشہور تھا۔ اچھی تدبیر کے لیے ہر اور اس کی چرچا ہو رہی تھی۔ اثر و رسوخ میں بھی سب سے آگے تھا۔ عطا سب نے اس فیصلے کا سمرتھن کیا اور طے ہو گیا کہ اسے ہی سردار بنا دیا جائے۔ تاج پوشی کے لیے تاریخ بھی طے ہو گئی، لیکن اچانک حالات کا رخ بدلا۔ یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ایشور کی اور سے ان کے سامان کے لیے کچھ اور ہی سامان ہو رہا تھا جو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور ان کے اپنے سوچے ہوئے اپائے سے کہیں زیادہ پربھاوکاری تھا، ارتھات توحید کا وہ پیغام جو انہیں آپس میں جوڑ دینے والا تھا اور اللہ کا وہ رسول جس کی رہنمائی قبول کر کے وہ دنیا اور آخرت میں سفل ہونے والے تھے۔ نبوت کا 10واں سال تھا۔ بواس کی لڑائی کے بعد پرتشٹھت مہینے آئے تو خزرج قبیلے کے 6 آدمی حج کے ارادے سے نکلے۔ ان کے ساتھ بنو نجار قبیلے کے بھی 2 آدمی تھے۔ یہ رشتے میں عبد المطلب کے ماموں تھے، وہی عبد المطلب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ یہ لوگ مکہ جاتے ہوئے عقبہ نامک ایک استھان پہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھتے ہی آپ نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ کس قبیلے کے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم خزرج قبیلے کے ہیں اور مدینہ سے آ رہے ہیں۔ کیا یہودیوں کے پڑوسی ہیں؟ یہودی بھی تو وہیں رہتے ہیں۔ ہاں، یہودی ہمارے پڑوسی ہیں، ہم وہیں رہتے ہیں۔ موقع ہو تو بیٹھیے کہ کچھ باتیں ہو جائیں۔ جی ہاں، کیوں نہیں، ہمیں آپ سے باتیں کر کے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی باتیں ان کے سامنے رکھیں، قرآن سے بھی کچھ پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کی باتیں سن کر وہ بڑے حیران ہوئے۔ آپ کی باتوں نے ان کے دل کو بڑا پربھاوت کر دیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جن کے بل پر یہود ہم کو دھمکی دے رہے تھے۔ خدا کی قسم اب یہ ایمان میں ہم سے بازی نہیں لے جا سکتے۔ وہ لوگ اسی سمے اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کانوں نے سنا اور من میں ہی محفوظ رکھ لیا۔ پھر وہ بولے، اللہ کے رسول، ہماری قوم میں جتنی برائیاں ہیں اور آپس میں بیر ہے اتنا کسی بھی قوم میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی برکت سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور سب کی رہنمائی میں جمع ہو جائیں، کیونکہ آپ سے زیادہ سرپری تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں نے خوشی خوشی حج کیا، پھر اپنی قوم کی اور واپس لوٹے۔ وہ اپنی قوم کے نئے نبی کی مبارک خبر دینے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، وہی نبی جس کے آنے کی یہودی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اوس پہلے ہی یہ خوشخبری سن چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ نہ جانے کتنے دل ایک دھرم کو اپنانے کے لیے مچل رہے ہیں اور نہ جانے کتنے سینے اس کو اپنے اندر بسانے کے لیے سراپا انتظار بنے ہوئے ہیں۔ اگلے سال جب حج کے دن آئے تو اوس اور خزرج کے 12 آدمی گھر سے نکلے۔ عقبہ میں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ وہیں پر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے سامنے یہ پرتجھیا بھی کی
कि अब हम किसी को अल्लाह का साझीदार ना बनाएंगे, चोरी से दूर रहेंगे, औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, किसी पर तोहमत ना लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने इस वचन को निभाया तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, और अगर इसमें से कोई बुराई तुमसे हो गई तो रब की मर्ज़ी पर होगा, वह चाहेगा तो माफ़ कर देगा और चाहेगा तो सज़ा देगा। यही प्रतिज्ञा बैअत अक़बा ऊला यानी अक़बा की पहली प्रतिज्ञा के नाम से मशहूर हुई। ये घटना नबूवत के 11वें साल की है। जब ये लोग मदीना लौटे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी उनके साथ कर दिया, ताकि वे मदीना वालों को कुरान पढ़ाएं, उन्हें इस्लाम की बातें बताएं और दीन की शिक्षाओं से वाकिफ़ कराएं। मदीना में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा था। लोग पहले से ही ज़्यादा सख्त प्यासे थे और मुद्दत से उसके लिए तड़प रहे थे। इस्लाम को पाकर उनकी प्यास बुझी और दिल की बेचैनी दूर हो गई। हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे जोश और उमंग से उनको दीन की बातें सिखा रहे थे। कुछ लोग जो झूठी इज्जत में डूबे हुए थे और इस्लाम की तरफ देखना भी अपने लिए शर्म की बात समझते थे, उन्होंने भी जब दीन की बरकतें देखीं और कुरान की आयतें सुनी तो वो भी पत्थर से मोम बन गए। ऐसे लोग यही नहीं कि खुद इस्लाम की ओर आए, बल्कि वे दूसरों को भी इस्लाम की ओर बुलाते रहे। हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना वालों को इस्लाम सिखाते और नमाज़ें पढ़ाते रहे, यहाँ तक कि घर घर दीन की रोशनी फैल गई। गली गली में इस्लाम की चर्चा होने लगी। बस कुछ ही बदकिस्मत थे जो शिर्क पर अड़े रहे और माँ बाप का धर्म छोड़ने पर तैयार ना हुए। अल्लाह मदीने वालों का भला करे। एक ही साल में वहाँ इतने मुसलमान हुए कि मक्का में सालों में ना हो सके। मदीना के लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का झंडा लहराया, हर तरफ आपका बोलबाला किया, और यह ठीक उस समय हुआ जबकि आपकी कौम आपको मिटा देने पर तुली हुई थी। इसलिए कोई हैरत की बात नहीं अगर मुसलमानों के दिल मदीना वालों के प्रेम से भर गए, उनसे करीब होने के लिए बेचैन हो गए और उन तक पहुँचने के लिए इस तरह तड़पने लगे जैसे पिंजरे का कैदी कोई पक्षी तड़पता हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बारे में बहुत फिक्रमंद थे, क्योंकि अब आपको ऐसे जानिसार मिल गए थे जो आपका साथ देने के लिए तैयार थे, ऐसे मददगार मिल गए थे जो आपकी हिमायत के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और ऐसे सहयोगी मिल गए थे जो आप पर न्यौछावर होने के लिए बेकरार थे। फिर निरंतर ऐसी खबरें भी मदीने से आ रही थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी आनंददायी, अत्यंत सुंदर और उज्ज्वल भविष्य की सूचना थी। मदीना वासियों के दिल जान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कबूल की थी। उन्होंने ठान लिया था कि आपकी मदद करेंगे और जान पर खेल कर भी आपकी हिफाजत करेंगे। उनकी बड़ी ख्वाहिश हुई कि काश उन्हें आपकी सहायता करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। क्रमशः काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया उन्हें नसीब हो जाए। आपस में उन्होंने कहा, खुदा के रसूल मक्का में परेशान हैं, मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। आखिर यह शर्मनाक मंजर हम कब तक देखते रहेंगे। अतः उन्होंने यह तय किया कि अब की बार जब हज के दिन आएंगे तो हम मक्का जाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना बुलाएंगे और उनसे हर प्रकार की हिफाजत की मदद की वादा करेंगे। हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से मक्का लौट आए। जो बातें आप जानना चाहते थे सब उनसे मालूम कर ली। हज का ज़माना आया तो मदीना से बहुत बड़ा काफ़िला हज के लिए रवाना हुआ। काफ़िले में मुसलमान भी थे और गैर मुस्लिम भी। मुसलमानों की तो नीयत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे और वफ़ादारी और जानिसारी का अहद करेंगे, मगर यह एक राज था जिससे उनके मुशरिक साथी बिल्कुल बेखबर थे। नबूवत का 12वां साल था। काबा में उन लोगों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और वहीं प्रतिज्ञा के लिए सही जगह भी चुनी गई। तिहाई रात बीत गई, हर ओर अंधेरा छा गया, सारे हंगामे खामोश हो गए। कुरैश नींद के नशे में मस्त हो गए, बाहर से आए हुए हाजी लोग भी सो गए। उस समय मदीना के मुसलमान चुपके से उठे। उनके 73 मर्द थे और 2 औरतें। ये लोग छिपा कर वहाँ से चल पड़े। अकबा पहुँच गए और मक्का से कुछ ही का फासले पर था।
वहाँ टीलों और चट्टानों की आड़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए, साथ में आपके चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला भी आए थे। ये आप अभी तक बाप दादा के धर्म पर ही थे, परंतु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे। उनकी भी ख्वाहिश थी कि इस अहम मौके पर मौजूद रहें और मदीना वालों के क्या इरादे हैं, क्या हौसले हैं, इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा कर लें। उन्होंने ही कार्रवाई शुरू की और बोले, खजरत वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारे दिलों में, खजरत वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे दिलों में जो स्थान है उसे तुम जानते ही हो। इन्हें हमने दुश्मनों से बचाया है, हमेशा डट कर दुश्मनों से मुकाबला किया है। सुन लो, ये अपने वतन से बिल्कुल महफूज हैं। दुश्मनों से इन्हें कोई ख़तरा नहीं है, मगर ये तुम्हारे यहाँ जाने के लिए बेकरार हैं, तुम्हारे पास रहने के इच्छुक हैं। तुम में अगर अपने वादों को निभाने का और दुश्मनों से इन्हें बचाने का साहस हो तब तो ठीक है, खुशी से ले जा सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें परेशानी हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर वादा पूरा ना करना हो तो फिर अभी से छोड़ दो। ये यहाँ इज्जत से हैं, इन्हें यहाँ कोई डर नहीं। चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बात कह चुके तो मदीना वाले बोले, आपकी बातें हमने सुन ली, अल्लाह के रसूल अब आप कुछ कहें, जिस बात पर चाहें हम हमसे कसम ले सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की कुछ आयतें पढ़ीं, फिर कहा, जिस तरह तुम अपने बाल बच्चों को बचाते हो, क्या उसी तरह मुझे भी बचाओगे? मैं बस इतना ही इत्मीनान चाहता हूँ। मदीना वालों में एक व्यक्ति बरा रज़ी अल्लाह तआला थे। ये मारूर के बेटे थे, कौम के बड़े सरदारों में से थे, सभी उनकी इज्जत करते थे। उन्होंने बेझिझक हाथ बढ़ाया और यह कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर प्रतिज्ञा की, हाँ, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको सत्य के साथ भेजा है, हम आपको बचाएंगे। अल्लाह के रसूल, हमसे आप वचन ले लें, खुदा की कसम हम तो बड़े योद्धा हैं, अगर ज़रूरत हुई तो हम आपकी ओर से जंग के लिए भी तैयार हैं। बस आपके हुक्म की देरी है। जंग से भागना तो हमारे लिए शर्म की बात है। जंग में डटे रहना ही हमारे बाप दादा का तरीका रहा है। बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अभी अपनी बात ख़त्म भी ना की थी कि यतहान के बेटे अबुल हैसम रज़ी अल्लाह तआला बोल उठे। ये भी मदीना के बाइज़्ज़त लोगों में से थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, यहूदियों से हमारे बड़े संबंध हैं, आपसे प्रतिज्ञा के बाद ये संबंध टूट जाएंगे। ऐसा तो ना होगा कि जब अल्लाह आपको विजय प्रदान करे तो आप हमको छोड़कर अपनी कौम की ओर लौट जाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और बोले, नहीं, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, तुम्हारी अमान मेरी अमान है। तुम मेरे और मैं तुम्हारा हूँ। जिसको तुम माफ़ करोगे उसको मैं भी माफ़ कर दूँगा, जिससे तुम्हारी जंग होगी उससे मैं भी करूँगा, जिससे तुम्हारी सुलह होगी उससे मेरी भी सुलह होगी। लोग बैअत यानी प्रतिज्ञा के लिए बढ़ना ही चाहते थे कि एक साहब बोल उठे, ऐ उबाद के बेटे अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उन्होंने कहा, भाइयों, तुम्हें मालूम भी है कि किस बात प्रतिज्ञा करने जा रहे हो? आवाज़ें, हाँ, खूब मालूम है, सुन लो, इस व्यक्ति से बैअत करना सारी दुनिया से लड़ाई मोल लेना है। तो अगर तुम्हारा यह विचार हो तो कि जब माल दौलत को खतरा हुआ या तुम्हारी कौम के सरदार मारे गए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दोगे, तब इन्हें अभी छोड़ दो, बाद में छोड़ेंगे तो दोनों जग में हंसाई होगी। लेकिन अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आर्थिक नुकसान सहन करने का साहस तुम में है और अपने सरदारों के मारे जाने पर अपना धीरज न खोने का हौसला है, तब अल्लाह के रसूल को अवश्य मदीना ले चलो। दुनिया और आखिरत दोनों की सफलताएं तुम्हें हासिल होगी। सब एक आवाज़ होकर बोले, माली नुकसान और सरदारों का कत्ल हो जाना हमें मंजूर है, पर अल्लाह के रसूल को छोड़ना मंजूर नहीं है। अय अल्लाह के रसूल, हम अपने वादे पर कायम रहें तो इसका हमें अल्लाह के यहाँ क्या बदला मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जन्नत। सब लोगों ने कहा, अच्छा तो अपना हाथ बढ़ाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बढ़ा दिया और सब लोगों ने बारी बारी बैअत यानी प्रतिज्ञा की।
یہی بیعت ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ یعنی عقبہ کی دوسری پرتیجا کے نام سے مشہور ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔